Hello friends, myself Rasika Pagaria from Araham College. In last lecture we are done with the second chapter. Second chapter में अपन ने हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन इसके बारे में पढ़ा था. We studied their art and craft, technologies, then their culture, their seal, coin, पूरा सब कुछ अपन ने we had studied about the Harappan civilization. Now we will start with the third chapter that is about the Vedic culture, religious protest, Jainism and Buddhism. Then in that we will be studying Vedic and later Vedic culture, religious protest and religious transformation. Okay, we'll start with the introduction. The cities of the Harappan culture had declined by 1500 BC. See, as we were aware कि बाबा अभी यहाँ पे क्या हो गया है, ये हड़प्पन कल्चर का पूरी तरह से डिक्लाइन हो चुका है. Consequently, their economy and administrative system had slowly declined. अभी हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन होने लग गया तो क्या है, उनका इकोनॉमी एंड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ये भी धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया है. Around this period, the Aryans entered the northwest India, probably from the Indo-Irani region. See, अपन ने सेकेंड चैप्टर के लास्ट में देखा था कि बाबा आर्यंस आ गए हैं बोल के, तो सेम थिंग यहाँ पे वही बोला है उन्होंने. जब ये डिक्लाइन हो गया हड़प्पन सिविलाइजेशन तब क्या हो गया, आर्यंस आ गए थे. आर्यंस कहाँ पे आ गए थे, आर्यंस एंटर्ड इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, प्रोबेबली फ्रॉम द इंडो-ईरानी रीजन. इंडो-ईरानी रीजन से वो नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में आ चुके थे. द वर्ड आर्या मीन्स नोबल. द वर्ड आर्या मीन्स क्या है, नोबल. आर्यंस migrated to India in several ways through the passes in the northwestern mountains. See, Aryans क्या है, they migrated to India. Aryans क्या है, इंडिया में आ गए, अलग अलग तरीके से आए. और कहाँ से आते थे वो, नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन से आते थे. नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन से they used to come to India. Their earliest life seemed to have been mainly pastorals, agriculture being a secondary occupation. See, their earliest life seemed to be like, उनका पहले का लाइफ कैसा था, पेस्टरल्स थे. एग्रीकल्चर, पेस्टरल्स मतलब शीप गोट ये सब रखना, दे आर नथिंग, दे आर टर्म्ड एज अ पेस्टरल्स. और फिर क्या था, और फिर एक और ऑक्यूपेशन था एग्रीकल्चर. बट पेस्टरल वॉज द फर्स्ट ऑक्यूपेशन एंड देयर सेकेंड ऑक्यूपेशन वॉज द एग्रीकल्चर. We know about the Aryans from the Rig Veda, right? Aryans के बारे में अपने को कब से पता है, we know about Aryans from the Rig Veda. Aryan names also appear in Kassite inscription of about 1600 BC from Iran and in Mitanni inscript of the 14th century BC from Syria. See, Aryan's name also appear in Kassite inscription. Aryans के नेम कहाँ पे देख सकते हो आप, we can see the Aryans name in the Kassite inscription also. We can see their name, that is of about 1600 BC from Iran and in the Mitanni inscription of the 14th century BC from Syria. They initially settled in the valleys of the northwest and the plains of the Punjab. See, आर्यंस कहाँ सेटल हुए, वो नॉर्थ वेस्ट वैलीज वहाँ पे सेटल हुए और पंजाब में भी सेटल हुए. प्लेन्स ऑफ द पंजाब वहाँ पे भी सेटल हुए. लेटर दे मूव्ड इनटू इंडो जेनेटिक प्लेन्स. सी, बाद में वो कहाँ शिफ्ट हुए, लेटर दे शिफ्टेड टू इंडो जेनेटिक प्लेन्स. दे लेड अ नॉर्मेडिक लाइफ एंड वेर मेनली इन सर्च ऑफ पेस्चर्स. दे ल्यूड अ नॉर्मेडिक लाइफ. वो क्या करते थे, they lived a nomadic life and they were in search of pastures. By 6th century BC, they occupied the whole of North India. By 6th century BC क्या हो गया, उन्होंने पूरा नॉर्थ इंडिया पे अपना कब्जा कर लिया था, which was referred to as आर्यवर्तास. फिर उनको जो आर्यंस ने पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे कब्जा कर लिया था, उनको अपन क्या बोलने लगे, आर्यवर्ता.
The period between 1500 BC and 600 BC may be divided into, see, ये जो period है 1500 BC and 600 BC, it is divided into two parts. That is the early Vedic period or Rig Vedic period, and the second was the later Vedic period. अर्ली वैदिक पीरियड और ऋग वैदिक पीरियड कब का है? इट इज़ फ्रॉम 1500 BC टिल 1000 BC. और सेकेंड द लेटर वैदिक पीरियड, इट इज़ फ्रॉम 1000 BC to 600 BC. Then we'll study the Vedic and later Vedic culture. The Harappans lived in cities and had a well organized trade and craft एक्टिविटीज़. से हरप्पन्स कहाँ रहते थे? हरप्पन लोग सिटीज़ में रहते थे और उनके ट्रेड एंड क्राफ्ट एक्टिविटी के बारे में अपने को तो पता ही है. लाइक वो लोग ट्रेड और ये बाकी क्राफ्ट की एक्टिविटी में कितने माहिर थे. उनके जितना उनसे अच्छा ट्रेड एंड ऑल कोई कर ही नहीं सकता, राइट? वो लोग इतने होशियार थे. दे ऑल्सो हैड अ स्क्रिप्ट विच वी हैव बीन सो फॉर नॉट एबल टू डेसिफर. सी उनके पास स्क्रिप्ट भी है और वो स्क्रिप्ट के बारे में अब तक अपने पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन कुछ नहीं है, राइट? उनके पास जो स्क्रिप्ट है उसके बारे में अपने को ज़्यादा कुछ नहीं पता है. हाउएवर अराउंड 1900 BC their cities began to decline. See, however around 1900 BC में क्या हो गया? उनके cities क्या हो गए? Their cities began to decline. A number of rural settlements appeared afterwards. उसके बाद से अपन ने देखा था आर्यन पीपल पहले सिटी में रहते थे और फिर डी अर्बनाइजेशन होने लग गया. पीपल स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स द विलेज एरिया. ये अपन ने देखा था. तो बस यहाँ पे भी वही बोला है. तो क्या हो गया? इसी वजह से क्या हो गया? धीरे धीरे तो सिटीज स्टार्टेड टू डिक्लाइन. A number of rural settlement appeared afterwards. फिर क्या हो गया? लोग क्या हो गए? अर्बन से रूरल एरिया में जाने लगे. तो बट ऑब्वियसली अर्बन सेटलमेंट कम हो गया और रूरल सेटलमेंट बढ़ गया. दिस रूरल सेटलमेंट शो कंटिन्यूटी ऑफ सर्टन हरप्पन एलिमेंट्स. ये जो रूरल सेटलमेंट था ये क्या था? ये पता चल रहा था कि वह हरप्पन सिविलाइजेशन यहाँ तक कंटिन्यू चल रहा था. लाइक ओनली द शिफ्ट वॉज फ्रॉम द अर्बन टू रूरल एरिया. Around the same time we find archaeological evidence of the arrival of new people known as Aryans or Indo-Aryans on the outskirts of the Harappan region. See, उसी वक्त जब ये हरप्पन के लोग देवर शिफ्टिंग अर्बन से वो लोग रूरल एरिया में जा रहे थे, बहुत से लोग रूरल एरिया में सेटल हो रहे थे, तब भी अपन ने क्या देखा? ये अर्बन सिविलाइजेशन, ये अर्बन सिटी के बाहर आउटस्कर्ट्स में कुछ लोग आके बस रहे हैं, राइट? वो कौन लोग थे? देवर नन अदर देन द आर्यंस पीपल, राइट? सी, अभी ये कहाँ से पता चला? आर्कोलॉजिकल एविडेंस, राइट? जब अपन ने एक्सकावेट किया तब तो फिर कुछ एविडेंस मिले, उसके ऊपर से अपन बोल रहे हैं. ये जो एविडेंस मिला उसके ऊपर से अपन बोल रहे हैं कि बाबा उस वक्त क्या हुआ? जब पीपल शिफ्ट हो रहे थे अर्बन से रूरल, तब न्यू पीपल नोन एज आर्यंस और इंडो आर्यंस वेर सीन उस वक्त आए होंगे ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द हरप्पन रीजन. वी शैल स्टडी द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच दिस न्यू पीपल अराइव्ड. अभी अपन सर्कमस्टेंसेस देखेंगे. अभी क्या हालत थी उस वक्त, क्यों ये पीपल आए इंडिया में, एंड ऑल्सो लर्न अबाउट द मेन फीचर्स ऑफ देयर कल्चर एज डिसाइडेड इन द लिटरेचर कॉल्ड द वेदास. और अपन आर्यन के फीचर्स, ये इंडो आर्यन ये जो लोग थे उनके बारे में, उनके फीचर्स के बारे में अपन सब पढ़ेंगे और उसको अपन ने आगे भी कॉल्ड इट एज अ वेदास. और ये सारे अपने को वेदास में भी लिखे हुए मिले हैं. देन मूविंग फॉरवर्ड, द अर्ली वैदिक पीरियड और ऋग वैदिक पीरियड. अपन ने दो पीरियड, ये जो आर्यन से उनका एज किस में अपन दो इसमें अपन ने डिवाइड किया.
दैट इज द लाइक अपन ने इसमें देखा द अर्ली वैदिक पीरियड एंड द लेटर वैदिक पीरियड। तो आज अपन पढ़ेंगे द अर्ली वैदिक पीरियड और ऋग वैदिक पीरियड, दैट इज 1500 BC to 1000 BC. After the decline of the Indus Valley civilization, another glorious civilization flourished in India. See, जब after the decline of the Indus Valley civilization, जैसे जैसे ये Indus Valley civilization decline हुआ, एक नया civilization आने लग गया इंडिया में. The people who were responsible for the evolution of this civilization called themselves Aryans or Aryanas. See, ये जो people है, now who are responsible for this new ये जो नया civilization आया है, इसका कौन जिम्मेदार है? या फिर जो people आए हैं जिनको अपन बोल रहे हैं कि नया civilization ये लोग ला रहे हैं, who are these people? They are Aryan or Aryanas. Arya literally means the man of noble character. See, Arya, ये जो अपन आर्यंस वगैरह सब बोल रहे हैं, तो ये आर्या का मीनिंग क्या है? आर्या लिटरली मीन्स द मैन ऑफ नोबल कैरेक्टर. आर्या का मीनिंग क्या है? द मैन ऑफ नोबल कैरेक्टर एंड द फ्री बॉर्न. आर्या का लिटरली मीनिंग द मैन ऑफ नोबल कैरेक्टर एंड द फ्री बॉर्न. They belonged to the group of people known as Indo-Europeans. See, they belong to the group of people known as Indo-Europeans. वो किसको अभी आर्यंस किधर बिलोंग होते? whom do the Aryan belong? They belong to the Indo-Europeans. They entered into India from the northwest. वो इंडिया में कहाँ से आए? From the northwest. Now we'll study the origin of Aryans. Still today we can't confirm that who were Aryans, where see, still today we can't confirm that who were Aryans and where they came to India. See, आज भी अपने को पता नहीं चल रहा है कि ये आर्यंस कौन है एंड वेयर दे केम फ्रॉम, और ये कहाँ से आए थे. Mention of Arya word is of holy dynasty or birth. See, meaning of Arya क्या है? Word is क्या है? Meaning of Arya word is of holy dynasty or birth. In other words, Arya is symbolic of superiority. See, other words में बोले जाएंगे तो क्या है? आर्या क्या है? ये सुपीरियर लोग हैं, लाइक बड़े लोग एज इन बोला क्या है. सी, आर्या का एक मीनिंग उन्होंने क्या बोला है? नोबल कैरेक्टर एंड द फ्री बॉर्न. और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? द मीनिंग ऑफ आर्या वर्ड इज अ होली डायनेस्टी और बर्थ. और एक बात क्या बोल रहे हैं? ये जो आर्यन पीपल है, दे वर द सिंबल ऑफ द सुपीरियरिटी. सम स्कॉलर्स से दैट देयर इज सिमिलरिटी बिटवीन संस्कृत, लैटिन, जर्मन एंड अदर इंडो. सी, कुछ स्कॉलर्स क्या बोल रहे हैं? सम स्कॉलर्स दे से कि पापा देयर इज सम सिमिलरिटी बिटवीन संस्कृत, लैटिन, ग्रीक एंड अदर इंडो यूरोपियन लैंग्वेज. ये जो लैंग्वेजेस है इनके बीच कुछ ना कुछ तो सिमिलरिटी रही होगी. Hence, ancestors of this language used the as much be same. See, अब इन सब लैंग्वेज के जो एंसेस्टर्स है वो कहीं ना कहीं तो थोड़े बहुत तो सेम रहेंगे. Aryan word denotes that particular group of people or species that have specific body structure. See, Aryan word, अब ये जो आर्यन वर्ड ये क्या अपने को डिनोट करता है? इट डिनोट कि बाबा ये जो आर्यन लोग हैं इनका एक स्पेसिफिक पोस्चर रहेगा. पोस्चर यानी पोजिशन ऑफ द बॉडी, हाउ यू सेट, स्टैंड, वॉक एंड ऑल. तो उनका एक अलग सा पोस्चर रहेगा थोड़ा बहुत. स्पेसिफिक बॉडी, नॉट पोस्चर, दे मे हैव अ स्पेसिफिक बॉडी स्ट्रक्चर. उनके पास क्या रहेगा? एक स्पेसिफिक बॉडी स्ट्रक्चर रहेगा उनका. आर्यंस पोजेस टॉल एंड वेल बिल्ट बॉडी. सी,
आर्यन कैसे थे? वे वे स्ट्रॉन्ग, और उनका बॉडी कैसा था? टॉल थे, टॉल और बिल्ड बॉडी था, लाइक स्ट्रॉन्ग बॉडी। अपन बॉडी बिल्डर्स वगैरह बोलते हैं ना, वैसे ही वो टॉल थे और उनका बॉडी भी ऐसे प्रॉपर बिल्ड था। दे आर and have a long nose. See, they are tall and have long nose. See, Aryan people क्या थे? Tall थे और उनके nose भी long थे. First Aryan word was used by Veda writer. See, सबसे पहले ये Aryan word किसने use किया? The first Aryan word was used by Veda writer. They referred themselves as Arya, superior, and opponent with Darasyu or Das. See, फर्स्ट वर्ड आर्यन, इट वॉज यूज बाय वेदा राइटर, और उसके बाद क्या है? दे रेफर्ड देमसेल्व एज आर्या, जो सुपीरियर है, एंड अपोनेंट विद दरस्यु और दास. दे यूज टू कंसिडर देमसेल्फ नोबल एंड सुपीरियर देन नॉन आर्यंस. सी, वो खुद को कैसे कंसिडर करते थे? दे यूज टू कंसिडर देमसेल्फ नोबल एंड सुपीरियर देन आर्यंस, देन नॉन आर्यंस. सॉरी, आर्यंस क्या है? खुद को सुपीरियर कंसिडर करते थे दूसरे आर्यन से, जो नॉन आर्यन से उनसे. आर्यन बिलोंग थर्मोकोल जोन. देयर मेन फूड वाज मिल्क, व्हीट एंड मीट एंड व्हीट. आर्यन का मेन फूड क्या था? मिल्क, व्हीट एंड मीट. दे वेर पैरन एडवेंचर एंड हार्ड वर्कर. सी, उनको क्या था? उनको एडवेंचरियस, लाइक ब्रेन गेम, एडवेंचरियस गेम पसंद थी, और वो हार्ड वर्कर पीपल थे. इवन टुडे देयर इज डिस्प्यूट बिटवीन स्कॉलर्स अबाउट देयर ओरिजिन. सी, आज भी क्या है? डिस्प्यूट चल रहा है बिटवीन स्कॉलर्स अबाउट देयर ओरिजिन. सम स्कॉलर्स ट्राई टू मेक देम बेसिक इंडियन सिटीजन बाय सेइंग दे हैड फॉरेन ओरिजिन. सी, कुछ स्कॉलर्स क्या बोलते हैं? ये मे भी इंडियंस ही रहेंगे, बस ये फॉरेन में जन्मे रहेंगे बोल के. वेरियस लॉजिक्स आर गिवन इन दिस रिगार्ड. बहुत से अलग अलग लॉजिक्स बोल रहे हैं. ऑन द बेसिस हिस्ट्री, लैंग्वेज, आर्कोलॉजी, ह्यूमन एटोनॉमी एंड वोकेबलरी, दे पोजेस फॉलोइंग लॉजिक रिगार्डिंग ओरिजिन पॉइंट ऑफ आर्यन. सी, अभी हिस्ट्री का ध्यान में रखते हुए, लैंग्वेज, आर्कोलॉजिकल, ह्यूमन एटोनॉमी एंड वोकेबलरी, इन सबको ध्यान में रखते हुए अपन आर्यन के बारे में एक पॉइंट बना सकते हैं. दैट इज द यूरोप इज ओरिजिन ऑफ आर्यंस, सेंट्रल एशिया, आर्टिक रीजन, इंडिया. वो कहाँ के ओरिजिन हो सकते हैं? दे माइट बी फ्रॉम द यूरोपियन ओरिजिन हो सकते हैं, सेंट्रल एशिया के हो सकते हैं, आर्टिक रीजन एंड इंडिया. देन सेंट्रल एशिया एज आर्यन होम. एज पर दिस, द ओरिजिन होम ऑफ द आर्यंस वॉज इन द यूरेशिया स्टेप्ड लैंड नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ ब्लैक सी एंड एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स कैस्पियन सी. सी, एज पर दिस, अभी आर्यन का मेन घर कहाँ पे रहेगा बोल रहे हैं अपन? इट इज़ इन द यूरेशिया. हाँ, जो लैंड्स है जो ईस्ट ऑफ ब्लैक सी के ईस्ट साइड में है एंड एक्सटेंडेड टूवर्ड्स द कैस्पियन सी. सम टाइम ड्यूरिंग द थर्ड मिलेनियम BC, ड्यू टू क्लाइमेटिक एंड एनवायरमेंटल चेंज, द ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम दिस एरिया माइग्रेटेड टू वैरायटी ऑफ जोन आउटसाइड द ओरिजिन होमलैंड. सी, ड्यू टू अभी थर्ड मिलेनियम में क्या हुआ? क्लाइमेट चेंज हुआ, एनवायरमेंटल सब चेंज हुआ, तो क्या हुआ? एक ग्रुप ऑफ पीपल क्या हुआ? ग्रुप ऑफ पीपल दे स्टार्टेड माइग्रेटिंग, और वो अलग अलग जोन में चले गए. लाइक अपना होमलैंड, होम कंट्री छोड़ के दे स्टार्टेड मूविंग टू डिफरेंट प्लेसेस. मैक्स म्यूलर, अ जर्मन स्कॉलर ऑफ कंपैरेटिव फिलोसॉफी, प्रोपाउंडेड. मैक्स म्यूलर क्या है? ये जर्मन स्कॉलर है. व्हाट इज सेड कि बाबा सेंट्रल एशिया होम थ्योरी ऑफ आर्यंस. उसने क्या लिखा है? ही सेड अबाउट द सेंट्रल एशिया होम थ्योरी ऑफ आर्यंस. अपार्ट फ्रॉम philology, scent resources, archaeology and examination of oral tradition also support this theory. See, ये अपन फिलोसॉफी अगर साइड में रखेंगे तो क्या है? ये स्कैंट रिसोर्सेज जो है, आर्कोलॉजी एंड एग्जामिनेशन ऑफ ओरल ट्रेडिशन, वो भी इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं. दे पीपल डोमेस्टिकेटेड हॉर्स एंड हैड डेवलप्ड व्हील व्हीकल सो मेक द माइग्रेट ईजियर. सी, ये लोग के पास क्या था? ये लोग एनिमल्स रखते थे और उनके पास क्या थे?
व्हील्स वगैरह भी थे, तो क्या है उनका माइग्रेट करना इजीली काम हो रहा था. लाइक दे कुड इजीली माइग्रेट जस्ट बिकॉज ऑफ द व्हील्ड एनिमल्स. जैसे अपन बुलक कार्ट वगैरह बोलते हैं ना, बुलक कार्ट, हॉर्स कार्ट, इन सब की वजह से क्या है, दे यूज टू माइग्रेट इजीली. However, these people did not come in a migrant mightily tolerant to separate with force of arms. ठीक है, एकदम से आए नहीं अपना हर के सब को सेपरेट करने के लिए वगैरह. द माइग्रेशन वॉज स्लो, ग्रेजुअल एंड मोस्टली पीसफुल. जब ये आर्यन पीपल स्टार्टेड टू माइग्रेट ना, their migration was slow, gradual and mostly peaceful. They spoke a variety of languages and dialects. See, वो अलग अलग बहुत से लैंग्वेजेस में बात करते थे. When they settled in different parts, their language and culture mixed and original vocabulary was augmented to modify. See, जब ये आर्यंस क्या हुए, अलग अलग कल्चर के लोगों के बीच में गए तो क्या हुआ, when they wait, जब वो अलग अलग कल्चर के बीच में गए तो क्या हुआ, उन्होंने वो कल्चर भी मिक्स कर लिया अपने लैंग्वेज में, और एक ऐसा आर्गूमेंट हो गया था कि बाबा एक नया लैंग्वेज आना चाहिए बोल के, और उनकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी मॉडिफाई होनी चाहिए. दिस थ्योरी ऑल्सो ट्राइड टू एक्सप्लेन द फ्यूचर एक्सपेंशन ऑफ आर्यंस इन इंडिया दैट वॉज अराउंड 2000 BC. देयर वर 2 areas in which Aryans settled. अब ये थ्योरी से अपने को पता चल रहा है कि पापा आर्यंस इंडिया में भी एक्सपांड हुए. इट वॉज अराउंड 2000 BC, और वो एरियाज क्या है, एंड देयर वर 2 areas इन विच आर्यन सेटल्ड. और आर्यंस इंडिया में 2 एरिया में सेटल हुए. फर्स्ट वॉज द अफगानिस्तान, फ्रॉम मॉडल काबुल टू पेशावर. एक जगह कहाँ पे सेटल हुए, एक तो अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से लेके मॉडर्न काबुल तक टू पेशावर, यहाँ पे सेटल हुए. एंड द सेकेंड वॉज खंडाहर, एंड सेकेंड वॉज द खंडाहर. द वैदिक आर्यंस मूव्ड फ्रॉम देयर अबाउट 1400 BC. अभी वैदिक आर्यंस क्या हुआ, वहाँ पे कब तक थे, इट वॉज अराउंड 1400 BC. क्रॉसिंग द वेरियस रिवर्स एंड प्रोग्रेसिव टूवर्ड्स इधर द स्वैट वैली और पंजाब. सी, उन्होंने क्या हुआ, बहुत से रिवर्स वगैरह क्रॉस किए, फिर क्या है धीरे धीरे ऐसे ही आगे बढ़ते गए, वैलीज वगैरह क्रॉस किया और वो पंजाब तक पहुंच गए, या फिर ऐसे सब रिवर्स क्रॉस करते करते पंजाब तक पहुंच गए. दिस एंटायर रीजन इंक्लूड्स अफगानिस्तान. अब कहाँ से कहाँ तक गए, द एंटायर रीजन इंक्लूड्स अफगानिस्तान, स्वैट वैली, पंजाब एंड इंडो-जेनेटिक watershed is collectively referred once as Sapta Sindhava, the land of the 7 rivers. See, कहाँ से उन्होंने पूरा रीजन, कितना रीजन एक्सटेंड किया देखो, लाइक अफगानिस्तान, स्वैट वैली, पंजाब, इंडो-जेनेटिक वाटरशेड्स, और फिर ये कहाँ तक गए उसके बाद, और इन सबको उन्होंने क्या बोला है, सप्त सिंधवाना. यहाँ पे 7 सी का संगम होता है, वो वहाँ तक गए जहाँ पे 7 सीज का संगम हो रहा है. They went till there. I think we'll wind up our lecture here. In next lecture, we'll be studying about the European origin. Thank you.